آداب، میں ہوں محمد رفیع احمد۔ پہلے خاص خبریں۔ دباک اسمبلی حلقے میں ضمنی انتخاب کے لیے مہم کا اختتام۔ آخری دن بھی اہم جماعتوں نے ایک دوسرے پر لگائے الزامات۔ گریٹر حیدرآباد میں سیلاب کے 3,87,000 متاثرین کو فراہم کی گئی مالی امداد۔ باقی متاثرین کو بھی فوری راحت فراہم کرنے چیف سیکرٹری سومیش کمار کی ہدایت۔ کے ٹی آر نے کہا تلنگانہ میں 6 سال کے دوران فی کس آمدنی میں 83.9% کا ہوا اضافہ۔ ریاست میں مرکز کو حاصل ہو رہے ٹیکس کا صرف آدھا حصہ ہی مل رہا ہے واپس۔ اکتوبر میں جی ایس ٹی سے حاصل ہونے والی 1 لاکھ کروڑ روپے سے کر گئی تجاوز، گزشتہ سال کے مقابلے 10% کا اضافہ۔ اور وزیراعظم نریندر مودی کو بہار میں این ڈی اے کی کامیابی کا یقین، کہا نتیش کمار کی قیادت میں ریاست ترقی کے راستے پر ہے گامزن۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ دباک اسمبلی حلقے کے لیے مہم آج شام اختتام کو پہنچی۔ منگل 3 نومبر کو صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک رائے دہی ہوگی۔ انتخابی مہم کے آخری دن تمام جماعتوں کے امیدواروں نے گھر گھر جا کر مہم چلائی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ دباک اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے مہم آج شام اختتام کو پہنچی۔ ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی ایس رامالنگا ریڈی کی موت کی وجہ سے ضمنی انتخاب کی ضرورت پیش آئی ہے۔ کووڈ-19 قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے 3 نومبر کو رائے دہی کے لیے وسیع تر انتظامات کیے ہیں۔ دباک حلقے میں دباک میونسپلٹی کے علاوہ دباک، توگوٹا، میروڈوڈی، دولت آباد، رائے پول، نارسنگی اور چیے گنٹا منڈل شامل ہیں۔ حلقے میں جملہ 1,98,758 ووٹرز ہیں۔ ان کے لیے 315 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ پورے حلقے میں 1,558 ایسے ضعیف اور معذور ووٹرز کی نشاندہی کی گئی ہے جنہیں پوسٹل بیلٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ کرونا وائرس میں مبتلا افراد کو پی پی ای کٹس فراہم کیے جائیں گے۔ ضمنی انتخاب کے لیے جملہ 23 امیدوار میدان میں ہیں۔ اصل مقابلہ ٹی آر ایس کے امیدوار ایس سجاتا، کانگریس کے سرینیواس ریڈی اور بی جے پی کے رگھونندن راؤ کے درمیان ہے۔ تمام 23 امیدواروں کے انتخابی نشانات کے علاوہ نوٹا کا نشان بھی ہوگا۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ ٹی آر ایس کی طرف سے ریاستی وزیر ہریش راؤ نے مہم کی قیادت کی۔ تمام منڈلوں کے دیہاتوں کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے گھر گھر جا کر ٹی آر ایس کے امیدوار سجاتا کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ ہریش راؤ نے کہا کہ رامالنگا ریڈی نے حلقے کی ترقی کے لیے کئی کام کیے اور اس سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے سجاتا کو منتخب کرنے کی ضرورت ہے۔ بی جے پی کے امیدوار رگھونندن راؤ نے حلقے کا تفصیلی دورہ کیا۔ بی جے پی کی طرف سے مرکزی وزیر کشن ریڈی، پارٹی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے، نظام آباد کے ایم پی ڈی اروند، فلم اداکار بابو موہن اور دوسروں نے مہم چلائی۔ روڈ شوز کے علاوہ بی جے پی نے چھوٹے پیمانے پر جلسے بھی منعقد کیے۔ کانگریس کے امیدوار سرینیواس ریڈی کی طرف سے پردیش کانگریس صدر اتم کمار ریڈی نے وسیع تر مہم چلائی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے سابق رکن اسمبلی متیم ریڈی کی بدولت دباک میں کئی ترقیاتی کام انجام دیے گئے اور ووٹرز سے اپیل کی کہ وہ متیم ریڈی کے فرزند سرینیواس ریڈی کو منتخب کریں۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے کہا کہ گریٹر حیدرآباد میں شدید بارش اور سیلاب سے متاثرہ افراد کو اب تک 387 کروڑ 90 لاکھ روپے کی امداد فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3,87,000 خاندانوں کو فی کس 10,000 روپے دیے گئے۔ چیف سیکرٹری نے امداد کی تقسیم کا آج عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس میں جائزہ لیا۔ انہوں نے بلدی نظم و نسق کے سیکرٹری اور جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ مالی امداد کی تقسیم کا ایک شیڈول تیار کریں۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں کو فوری راحت فراہم کرنے کے لیے احکام جاری کیے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ متاثرین کو ان کے مکان پر ہی امداد فراہم کی جائے۔ متاثرین کی مالی امداد کے لیے حکومت نے 550 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ اس سال اکتوبر میں جی ایس ٹی سے ہونے والی آمدنی 1 لاکھ کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ فروری کے بعد پہلی مرتبہ جی ایس ٹی سے حاصل ہونے والی آمدنی 1 لاکھ کروڑ سے بڑھ گئی ہے۔ اکتوبر میں جملہ 1,05,155 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی، جس میں 19,193 کروڑ روپے سی جی ایس ٹی، 5,411 کروڑ ایس جی ایس ٹی اور 52,540 کروڑ روپے آئی جی ایس ٹی شامل ہیں۔ وزارت فائنانس نے بتایا کہ 8,011 کروڑ روپے سیس کی شکل میں وصول ہوئے۔
तेलंगाना के वजीर सनत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा कि रियासत से मरकज को टैक्स की सूरत में जाने वाली आमदनी का सिर्फ आधा हिस्सा ही रियासत को वापस आ रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक टैक्सों की सूरत में रियासत से मरकज को 2,75,926 करोड़ रुपये हासिल हुए, ताहम रियासत को सिर्फ 1,40,329 करोड़ रुपये फराहम किए गए। उन्होंने ट्विटर पर रियासत की शरह तरक्की और आमदनी के आदद शुमार जारी किए। KTR ने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद से रियासती अवाम की फीकस आमदनी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। 2014 से 2020 तक भारत में फीकस आमदनी में 54.9% इजाफा हुआ, जबकि तेलंगाना में फीकस आमदनी में 83.9% का इजाफा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि रियासत की मजमूई शरह तरक्की में भी भारी इजाफा हुआ है। अहम शोबों में सरमायाकारी के अलावा हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर किए गए अखराजात के नतीजे में ये मुमकिन हुआ है। बिहार असेंबली के उन हलकों में जहां 3 नवंबर को रायदही होने वाली है, इंतखाबी मुहिम आज अख्तिताम को पहुंची। बिहार के दूसरे मरहले के इंतखाबात के अलावा मध्य प्रदेश, तेलंगाना और दीगर रियासतों में मखलूआ असम्बली नशिस्तों के लिए भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे। कोविड क़वायद पर अमल करते हुए ओहदेदारों ने रायदही के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के समस्तीपुर और छापरा में मुनक्किदा रैलियों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में NDA इत्तेहाद का फिर एक बार इख्तिदार पर आना यकीनी है। उन्होंने कहा कि पहले मरहले की रायदही के बाद ही ये वाज़ेह हो गया कि ये इंतखाबात में जीत किसकी होगी। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की क़यादत में बिहार में तरक्की की राह पर गामजन है। नजर हमेशा गरीब के पैसों पर हो, उसे कभी गरीब का दुख, उनकी तकलीफ दिखाई नहीं देगी। वहीं भाजपा के नेतृत्व में NDA का हमारा गठबंधन देश के गरीब के जीवन से, बिहार के गरीब के जीवन से मुश्किलें कम कर रहा है। वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने आदिलाबाद जिले के बोथ हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वड्डूर से नेरेडी गुंडा और इचुड़ा से मुकरा तक 7 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली सड़कों का उन्होंने संग बुनियाद रखा। बाद में उन्होंने मुकरा के गांव का दौरा करके पल्ले प्रकृति वनम में शजरकारी की। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली बापूराव राठौड़ और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि आने वाली नस्लों को सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए शजरकारी पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। 3,60,00,000 రూపాయలతో శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది। ఇచ్చోడ మండలంలో ముగ్రా గ్రామంలో ఈరోజు 3,71,00,000 రూపాయలేమో రోడ్డు కొరకు, ఇంకా బ్రిడ్జ్ మనం ఫౌండేషన్ వేయలేదు, DPR సబ్మిట్ చేశారు, దానికి కూడా 3,80,00,000 రూపాయలు బ్రిడ్జ్ కొరకు అక్కడ ప్రపోజల్ పోయింది, అది కూడా మంజూరు కొరకు ప్రయత్నం జరుగుతుంది। ఇప్పుడైతే మనం రోడ్ బ్రిడ్జ్కు శంకుస్థాపన చేసుకున్నాము। అదేవిధంగా करीमनगर जिले में चपाडंडी के रुकन असम्बली S रविशंकर ने चपाडंडी मंडल की जरई मार्केट और भोपालपट्टनम, चियकुंटा और रुकमापुर मंडलों के बाज़ देहातों में धान की खरीदी के मराकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में उगाई गई धान, कपास और मकई हुकूमत ही खरीद रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इस इक़दाम के जरिए किसानों को किसी भी नुकसान से बचाना चाहती है। पंचायत राज के वजीर एरबल्ली दयाकर राव ने कहा कि किसानों की ज़रई पैदावार हुकूमत ही अक़ल तरीन दामों पर खरीद रही है। उन्होंने वरंगल जिले के रायापर्ती मंडल के मेलारम गांव में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से कायम किए गए खरीदी के मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत किसानों के बाज़ ज़रई अशिया की खरीदी के लिए आगे नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है कि रियासत में रूबा में लाई जा रही स्कीमों के लिए मरकज़ी हुकूमत ही फंड्स फराहम कर रही है, जबकि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा देने में भी नाकाम हो गई है। महबूबनगर जिले के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर कृष्णा ने आवाम से अपील की कि वो मौसम सरमा में कोविड के फैलाव के अंदेशे के पेश नज़र चौकस रहें।
दूरदर्शन से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड के केसेस में इस वक्त कमी आई है, लेकिन अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई तो इसमें फिर एक बार इजाफा हो सकता है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनकर, समाजी दूरी इख्तियार करते हुए और बार बार हाथ धोकर इस वायरस से बचा जा सकता है। महबूबनगर टू टाउन पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवासचारी ने कहा कि त्योहारों के सीजन के पेश नज़र तमाम शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। रियासत में MBBS और BDS कोर्सेज में दाखिलों का अमल शुरू हो गया है। इस सिलसिले में कॉलेजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नीट 2020 में अहलियत हासिल करने वाले उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो अपने नाम दर्ज करवाएं। कोरोना वायरस के पेश नज़र ओरिजिनल असनाद की जांच करते हुए PG कोर्सेज की तरह UG कोर्सेज में दाखिले मुमकिन किए जाएं। यूनिवर्सिटी ने आज से 8 तारीख तक उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की हिदायत दी है। फॉर्म की खानापुरी के अलावा उम्मीदवारों को मुताल्लिका सर्टिफिकेट स्कैन करते हुए वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। इन दरखास्तों और असनाद की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी ख़तई मेरिट लिस्ट जारी करेगी। वायरस तेजी से फैल रहा है। करीब से छींकने, खांसने या बात करने पर जरासीम फैलकर जिस्म में मुंतकिल होते हैं। कोविड-19 एक आलमी वबा है, लेकिन घबराइएगा मत। कोविड से महफूज रहने या फिर आने पर इसे शिकस्त देने के लिए आइए इन 3 उसूलों पर अमल करेंगे। मास्क का इस्तेमाल ही हमें बचा सकता है। बाहर निकलने पर नाक और मुंह को मास्क से पूरी तरह ढांक ले। समाजी दूरी ही अब महफूज अमल है। आदमी से आदमी के दरमियान 6 फीट का फासला रखेंगे। सफाई ही हमें महफूज रख सकती है। बार बार अपने हाथों को साफ धोएंगे। कोविड के फैलाव को रोकेंगे। कोरोना पर फतह पाएंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दुब्बाक असम्बली हल्के में ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम का इख्तिताम। आखिरी दिन भी अहम जमातों ने एक दूसरे पर लगाए इल्जामात। ग्रेटर हैदराबाद में सैलाब के 3,87,000 मुतासरीन को फराहम की गई माली इमदाद। बाकी मुतासरीन को भी फौरी राहत फराहम करने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की हिदायत। KTR ने कहा तेलंगाना में 6 साल के दौरान फीकस आमदनी में 83.9% का हुआ इजाफा। रियासत में मरकज को हासिल हो रहे टैक्स का सिर्फ आधा हिस्सा ही मिल रहा है वापस। अक्टूबर में GST से हासिल होने वाली 1 लाख करोड़ रुपए से कर गई तजावुज। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 10% का इजाफा। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बिहार में NDA की कामयाबी का यकीन। कहा नीतीश कुमार की क़यादत में रियासत तरक्की के रास्ते पर है गामज़न।